इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, बैटरी, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन एमसीक्यूज में आपका एक और फिर से स्वागत है। तो हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं and these are very most important that as already I have told you that very important for JEE examination point of view. So the first question is the method appropriate for heating of non-ferrous materials is. The method appropriate for heating of non-ferrous materials is. They are talking about non-ferrous materials के लिए जो appropriate method है heating का वो कौन सा रहता है। तो guys देखिए, the first option is resistance heating, second option is radiant heating, third is eddy current heating and the fourth is indirect arc heating. तो राइट ऑप्शन इज योर डी, indirect arc heating, बिकॉज जो आपका नॉन फेरस मेटल रहता है उसके लिए जो क्या रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी हीटिंग के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। जो इंडायरेक्ट आर्क हीटिंग की जो फर्नेस रहती है विच इज़ वेरी सुटेबल फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट हीटिंग, सो दैट्स वाई द इंडायरेक्ट आर्क हीटिंग इज यूज्ड फॉर नॉन फेरस मटेरियल, हीटिंग ऑफ नॉन फेरस मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जो आपकी फ्यूज़ वायर रहती है, जैसे आपकी सिल्वर की होगी, कॉपर की होगी, वो उसकी जो रेटिंग है किस चीज़ में रहती है। ऑप्शंस आर वोल्टेज, एम्पियर वोल्ट्स, एम्पियर आवर्स एंड एम्पियर। द राइट ऑप्शन इज योर डी, एम्पियर्स। फ्यूज़ वायर की जो रेटिंग रहती है एम्पियर्स में रहती है। और जो फ्यूज़ आपका जो वायर है यूज़ की जाती है, फ्यूज़ यूज़ किया जाता है लेस देन 66 kV और आपका लेस देन 200 एम्पियर अगर करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग ये आपकी मैं फ्यूज़ की आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, ए फ्यूज़ इज़ नॉर्मली, ये फ्यूज़ जो आपका नॉर्मली किस तरह का डिवाइस है। पावर लिमिटिंग डिवाइस है, वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस है, करंट लिमिटिंग डिवाइस है, पावर फैक्टर करंट करेक्टिंग डिवाइस है। तो राइट ऑप्शन इज़ योर करंट लिमिटिंग डिवाइस, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इज़ ए करंट लिमिटिंग डिवाइस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज hysteresis loss and eddy current loss are used in a. Options are dielectric heating, induction heating of steel, induction heating of brass, resistance heating. The right option is your dielectric heating. Hysteresis loss and eddy current losses are used in dielectric heating. In dielectric heating, and it uses the dielectric loss whenever the heating is produced from the material. नेक्स्ट इज पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ। पावर फैक्टर लीडिंग किस केस में होता है। इंडक्शन हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, डायलेक्ट्रिक। इट इज़ वेरी इजी, ऑप्शन इज राइट आंसर इज सी, डायलेक्ट्रिक हीटिंग, बिकॉज डायलेक्ट्रिक हीटिंग में कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। और जो कैपेसिटर जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, एज वी नो दैट इसमें जो करंट क्या करता है आपका लीड करता है 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज, तो वो क्या होता है, लीडिंग होता है। तो इसलिए डायलेक्ट्रिक हीटिंग में जो पावर फैक्टर क्या रहता है, लीडिंग रहता है, बिकॉज द कैपेसिटर इज यूज्ड इन द डायलेक्ट्रिक हीटिंग। Next is for dielectric heating, the range of frequency normally employed is. Dielectric heating, the range of frequency is normally employed is. For the dielectric heating, the range of frequency is maximum as much as we can, like 10 megahertz to 40 megahertz is range of frequency in dielectric heating. Next is the method METHOD, the method of heating used for non-conducting material is. Options are radiant heating, dielectric heating, resistance heating, induction heating. The right option is dielectric heating. Option B is the right answer. Non-conducting materials like fibers, your jute, your strands, bone, plastics, non-conducting materials, whenever they produce the heating, whenever they are subjected under the dielectric heating, the dielectric loss is produced in the form of heat, and that is utilized by the dielectric heating. That's why the method of heating used for non-conducting material is dielectric. Next question is fill in the blanks is not an application of dielectric heating. Diathermy, soldering, food processing, gluing of wood. देखिए gluing of wood, food processing, dielectric heating की जो आपके एप्लीकेशन है, एंड डायथर्मी भी है, लेकिन जो सोल्डरिंग है इट इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इंडक्शन हीटिंग इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना इज यूज्ड. नेक्स्ट इज इंडक्शन फर्नेसेस आर यूज्ड फॉर. जो इंडक्शन फर्नेसेस रहती है वो किस में आपकी यूज़ की जाती है. जो इंडक्शन फर्नेसिंग आर यूज्ड फॉर द हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्टिंग. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ indirect arc furnace is to melt. The main application of indirect arc furnace is to melt steel, iron, non-ferrous metal. The right option is your non-ferrous metal.
इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में जो क्या रहता है आपका नॉन फेरस मेटल्स को क्या रहता है जो है इसमें एक तरह से जो द मेन एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज़ टू मेल्ट नॉन फेरस मेटल। समटाइम इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन आपका जो फेरस मटेरियल बट वेरी लिटिल बिट, बट मोस्टली इट इज़ यूज्ड इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज यूज्ड टू मेल्ट नॉन फेरस मेटल। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज़ यूज्ड इन, जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है वो किस में यूज़ की जाती है? डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज़ यूज्ड इन resistance welding, yes. Electrode boiler, yes, right answer. Salt bath furnaces, yes, exactly. All option are correct. Direct resistance heating, इसमें जो क्या रहता है आपका जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में आपका जो हीट जब प्रोड्यूस की जाती है तो उसमें जो क्या कहते हैं आपको इलेक्ट्रोड बॉयलर हो, चाहे साल्ट बाथ फर्नेस हो या रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो, इन तीनों में जो इसका यूज़ किया जाता है। इन एन आर्क फर्नेस द चोक इज़ प्रोवाइडेड टू, चोक का क्या काम रहता है? CHOK चोक। देखिए जब एयर गैप में वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो एयर आपकी आयनाइज हो जाती है। आयनाइज जब हो जाए एयर तो वहाँ पे इस तरह की एक आर्क प्रोड्यूस होती है, एक तरह से उसको आर्क कहते हैं। उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम? चोक यूज़ करते हैं, स्टेबलाइज द आर्क। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इंडक्शन हार्डनिंग इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग। देखिए इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है? इंडक्शन हार्डनिंग इज़ नथिंग बट सिंपली it is a form of induction heating. It is a form of heat and that is used to that is used induction hardening, that is used to क्या किया जाता है इसमें? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना इसमें यूज़ होता है। जो फेरस मटेरियल है उसको पुट किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी जो उस तरह से हीटिंग की जाती है फेरस मटेरियल की, तो वो जो आपका इंडक्शन हार्डनिंग जो क्या पॉसिबल होती है आपकी फेरस मटेरियल में। इंडक्शन हार्डनिंग इज़ नथिंग बट सिंपली ये इंडक्शन हार्डनिंग ये जो आपका प्रोसेस ऑफ हीटिंग एक तरह से, और जो मटेरियल को जो क्या किया जाएगा? हीटअप किया जाएगा और उसके बाद उसको क्वेंच्ड किया जाएगा। नॉर्मल वोल्टेज यूज्ड इन डायरेक्शनल हीटिंग इज़, नॉर्मल वोल्टेज यूज्ड इन डायरेक्शनल हीटिंग इज़ 1.5 kV। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। So guys, it was the last question. I hope you understand, and please do subscribe our channel Adnara World and share and like our video, and thank you for watching this. Thank you.